محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، توصیف، بڑائی، لائق و زیبا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو حقیقی معنوں میں تمام قسم کی تعریفات کا مستحق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، کہ جنہوں نے امت مسلمہ تک دین کو پہنچانے میں، دین کی نشر کے سلسلے میں، دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ایک ایک نقطہ، ایک ایک پہلو کو ہمارے سامنے اجاگر کیا۔ محترم سامعین اعظام، یہ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے تب سے لے کر کے، اور اس دنیا کی جب تک انتہا نہیں ہو جاتی اس وقت تک انسان گناہوں میں، خطاؤں میں، لغزشوں میں اس کا مبتلا ہونا یہ ایک بشری تقاضا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ انسان کے فطرت میں یہ چیز ودیعت کر دی گئی ہے کہ جہاں اس کے اندر خیر کا پہلو رب العالمین نے رکھا ہے، وہی اس کے اندر شر کا پہلو بھی موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس انسان کے ساتھ ہمیشہ شیطان جیسا شریر لگا رہے 24 گھنٹہ، ایک حقیقی دوست سے بھی بڑھ کر کے جو لگا رہے انسانوں کو بہکانے کے لیے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان انسانوں سے کتنی خطائیں اور لغزشیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا بھی سد باب ہماری شریعت نے کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، ہماری شریعت نے اس کو رکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ خطاؤں کا ہونا، لغزشوں کا ہونا یہ بہت بڑی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ اس پر اصرار کرنا، خطاؤں میں جم جانا، اور مزید جب اس کی رہنمائی کے لیے کوئی شخص آئے تو اس میں پھر بیجا تعویلات پیش کرنا، ادھر ادھر کی باتیں پیش کرنا توڑ مروڑ کر کے کہ ہمارے حالات ایسے تھے تو اس وجہ سے ہم نے یہ قدم اٹھایا، کہ ہمارے حالات ویسے تھے تو ہم نے یہ قدم اٹھائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شیطانی وساوس اور شیطانی خیالات اور اتباع الشیاطین، خطوات الشیاطین کا ایک پہلو ہے، کہ جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے جو راستے ہیں، اس کے خطوات ہیں، اس سے بچ کر کے رہنا۔ تو جو شخص خطا کرتا ہے اور خطا کر کے اپنی گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ کی طرف تائب ہوتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، تو ایسا شخص بہت ہی بہترین شخص ہے شریعت کی نظر میں۔ لیکن اگر اس میں جم جائے تو ایسے شخص کے سلسلے میں ہماری شریعت اس کی تنبیہ کرتی ہے، اس کی مذمت بیان کرتی ہے۔ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے اور اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے، اور امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ کل بنی آدم خطا، کہ جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ سب کے سب خطا کار ہیں، لغزشیں کرتے ہیں، عصیان کرتے ہیں، نافرمانیاں ان سے ہو جاتی ہے، لیکن نافرمانیوں میں جو نہیں جمتے، ان نافرمانیوں سے جو تائب اللہ ہوتے ہیں، رجوع اللہ ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مژدہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ اللہ کے نزدیک اور شریعت کے نزدیک سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا۔ دیکھیے خطا کرنے والا بھی ہے
और उसमें शरीयत फिर ये भी कह रही है कि सबसे बेहतरीन खताकार। तो सिलसिला और इसको समझने की जरूरत है कि इंसान से आप ये कहें कि उनसे गलती ही ना सरजद हो, वो फरिश्ता सिफत बन जाए, ये नामुमकिन चीज है। इंसान फरिश्ता नहीं बन सकता कि उससे गलतियों का सरजद ही ना हो, क्योंकि इंसान को इंसान कहते ही इसी वजह से है कि उससे निस्यान होती है, उससे गलतियों का सरजद होता है, उससे भूल चूक हो जाती है। लेकिन बेहतरीन इंसान हमारी शरीयत के नजदीक वो शख्स है जो गुनाह करने के बाद उसको उस गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस हो, और शर्मिंदगी महसूस होने के बाद वो ताइब इल्लाह हो, अल्लाह की तरफ रुजू करे, उस गुनाह को छोड़ करके वो फिर से अल्लाह की तरफ आ जाए, तो ऐसा शख्स बहुत ही बेहतरीन है। बरअक्स उस शख्स के जो गुनाह करता है और हीले बहाने और बेजा तावीलात करके अपने उस गुनाह में मुनहसिर रहता है और उस गुनाह में डटे रहता है। ये चीज बहुत खतरनाक है। एक मोमिन का शेवा क्या है? एक मोमिन और कामिल मुसलमान जब उससे कोई खता या गुनाह या लग़्ज़िश हो जाती है तो उसको बड़ी बेचैनी महसूस होती है, उसका दिल, उसकी दिल की कैफियत बड़ी घबराहट से महसूस होती है उसको। जब भी कभी किसी कामिल मोमिन जो होता है, अल्लाह वाला होता है या मुसलमान कामिल होता है, उसके अंदर अल्लाह का खौफ, उसका डर, उसकी खशियत मौजूद होती है, तो जब भी उसे कोई खता, कोई लग़्ज़िश, कोई इस्यान हो जाती है तो उसका दिल घबराहट का शिकार हो जाता है, उसके दिल में बेचैनी महसूस होने लगती है, वो चैन से ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है, ना चल पाता है। इस कदर घबराहट उसके इसमें तारी रहती है कि वो इस खौफ में मुब्तला रहता है कि कहीं अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आकर के मुझे पकड़ ना ले, या किसी अजाब का मैं दो चार ना हो जाऊं किसी अजाब से। वो इसी वहमो गुमान में मुब्तला रहता है। और इसके बिलमुकाबिल एक वो शख्स जो गुनाहों को बहुत मामूली समझता है, गुनाहों को कुछ समझता ही नहीं, वो मामूली गर्दानता है, उसके लिए बड़े से बड़े गुनाह और बड़े से बड़े इस्यान में वो मुब्तला हो जाए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिलसिले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद का वो कौल याद रखना चाहिए जो उन्होंने बयान किया, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर इनके इस कौल को नकल किया है कि तुम लोग जो अमल करते हो कि एक मोमिन कि जब वो गुनाह उससे सरजद हो जाए, इन्नल मुमिन यरा जुनूबहु का जुबाब, एक मोमिन जब उससे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो ऐसा महसूस करता है अपने गुनाहों के सिलसिले में कअन्नहु काइदुन तहत जबल, कि गोया कि वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हो, और क्या हो कि यकाउ अलैहि, और इस बात पर वो खौफ महसूस करता हो और डर महसूस करता हो, उसे ये डर सता रही हो कि कहीं मेरे गुनाहों की वजह से ये पहाड़ मुझ पर गिर ना जाए और गिरने की वजह से मैं इस दुनिया से खत्म ना हो जाऊं। तो ये किसकी सिफत बतला रहे अब्दुल्लाह इब्न मसूद? उस शख्स की जो कि मोमिन होता है। इन्नल मुमिना यरा जुनूबहु, कि एक मोमिन अपने गुनाहों को ऐसा तसव्वुर करता है, ऐसा सोचता है कि कअन्नहु काइदुन तहत जबल, कि गोया कि वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हो और इस बात को उसके अंदर खौफ महसूस होता हो कि ये पहाड़ अब या तब मेरे पर गिर जाएगी और गिरने के बाद मैं हलाक हो जाऊं। ये किसकी सिफत बतला रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद? ये मोमिन की सिफत बतला रहे हैं, ये कामिल मोमिन की सिफत बतला रहे हैं कि जिसके अंदर अल्लाह का खौफ हो, जिसके अंदर अल्लाह की खशियत हो और जिसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत उसके तड़प हो। अल्लाह से मोहब्बत भी उसके अंदर होनी चाहिए, सिर्फ खौफ से काम नहीं बनता बल्कि अल्लाह की मोहब्बत भी होनी चाहिए, इस्लाम की मोहब्बत होनी चाहिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत होनी चाहिए। तो ऐसे शख्स का दिल गुनाहों के बाद मुतमईन नहीं रहता, वो मुतमईन होकर के आराम से एसियों के, कूलरों के पंखों में और घरों में सोया नहीं रहता, बल्कि वो अल्लाह की मस्जिद में आता है या रात के अंधेरियों में, तारीखों में उठ करके अपने गुनाहों की माफी जब तक अपने रब से नहीं करवा लेता वो चैन से नहीं बैठता। लेकिन इसके बिलअक्स अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने क्या फरमाया कि वह इन्नल फाजिरा यरा जुनूबहु का जुबाब, कि एक फाजिर शख्स का मिसाल, उसकी मिसाल ऐसी है कि जब वो गुनाह करता है तो वो उस तरीके से अपने गुनाहों को तसव्वुर करता है जैसे कोई मक्खी, और वो मक्खी क्या मिसाल देते हैं कि जैसे कि कोई मक्खी उसके नाक पे आकर के बैठ गई। और एक इंसान की सिफत है कि जब भी कोई मक्खी या कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसके चेहरे पे आकर के बैठता है तो वो क्या करता है, अपने हाथ को उठाता है और इस तरह करके हटा देता है, ऐसे तो करता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मामूली चीज बैठी, उसको हमने हाथ से इधर किया और वो चली गई, ये मामूली चीज की तरफ इशारा बतलाना मकसूद अब्दुल्लाह इब्न मसूद का। तो एक फाजिर शख्स भी गुनाह करने के बाद ऐसे ही अपने गुनाह को बस गुनाह करता है, उसके बाद क्या कहता है, अरे चलो हो गया, ये तो मामूली गुनाह है, मामूली चीज है, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम, वो तो बहुत माफ करता है।
इतने सारे गुनाह और खताएं हमारे समाज और हमारे माशरे के अंदर मौजूद है कि हमारे बुनियादी अरकान जिसको कहते हैं, जिसको शरीयत ने कहा कि बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियादी अरकान जो 5 है, शहादतैन के बाद जो सबसे अहम और बुनियादी रुकन है नमाज सलवात के सिलसिले में हमारे समाज और माशरे में हमारे मुसलमानों में कितनी गफलत और कोताहियां पाई जाती हैं। क्या इस सिलसिले में मुसलमान के दिलों में जर्रा बराबर भी खौफ नहीं आता, बल्कि इससे बढ़ करके कि एक मुसलमान अगर फजर की नमाज पढ़ता है तो उससे जोहर और असर की नमाज उसको छोड़ दीजिए कि वो मौजूद भी रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर असर पढ़ा तो मगरिब नहीं, मगरिब पढ़ा तो ईशा नहीं, ईशा पढ़ा तो फजर नहीं। यह हमारे मुसलमानों की हालत है। और नौजवानों की हालत इससे भी बदतर है कि बहुत सारे नौजवान इस गफलत में मशगूल रहते हैं कि अभी जवानी है, अभी दीवानी है, अभी वक्त बहुत लंबा है, अभी सवेरा बहुत दूर है, जब होगा तब देखा जाएगा। तो ये किस चीज की अलामत है? ये गुनाह दरअसल करते करते जब दिल के अंदर वो गुनाह डट जाते हैं और गुनाह करते करते जब अल्लाह की तरफ से मुहर लग जाती है और दिल सियाह हो जाता है, तो फिर इंसान शरीयत की तरफ उसका लौट करके आना, अल्लाह की तरफ उसका लौट करके आना और खासतौर से अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करना उससे बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन लोगों को खासतौर से सोचना चाहिए जो मोहब्बत रसूल के नाम पर या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाते हैं, जो बिदात और खुराफात करते हैं, जो दीन इस्लाम की बुनियादी अराकीन के साथ खिलवाड़ करते हैं और जो मुसलसल 24 घंटे शराब में, जुए में, सूदी लेन देन में और इस तरह की जो दीगर और भी बहुत सारी बीमारियां हैं उसमें मुलव्विस है, एक दूसरे मुसलमान से हसद करने में, एक दूसरे मुसलमान की बुराइयां करने में, एक दूसरे मुसलमान की टोह में लगने में, एक दूसरे के घरों को तबाह व बर्बाद करने के लिए ये तमाम के तमाम जो कबाइर गुनाह में शुमार होते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके दिल में खौफ खुदा ना पैदा हुआ और उसके बावजूद भी अगर आप अपने गुनाहों से पीछे ना हटे, तो यकीन जानिए कि अल्लाह ने जो कुरान में जो चीज कही है कि कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, जो सूरह मुतफ्फिफीन में अल्लाह ने कहा है, बल्कि मामला ये है कि ये लोग जो गुनाह करने के बावजूद भी इनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत और उसकी मोहब्बत नहीं पैदा होती कि किसी तरीके से रजा के तौर पर, खौफ के तौर पर वो अपने गुनाहों से ताइब होकर अल्लाह की तरफ रुजू करे, तो याद रखिए कि ये चीज उसके दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहर मारी। वो हदीस में है कि जब भी इंसान एक गुनाह करता है तो कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बी, तो उसके दिल में एक मोहर मार दी जाती है। मोहर से पहले आता है एक हल्का सा नुक्ता, उसके दिल में सियाह नुक्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से डाल दिया जाता है उसके दिल के अंदर। अगर वो ताइब हो जाए और गुनाह कर ले और उस गुनाह की तरफ दोबारा ना जाए, तो फिर वो नुक्ता जो अल्लाह की तरफ से उसके दिल में लगाया गया था वो मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह दर गुनाह करते रहे, इस्यान और नाफरमानी में बढ़ता चला जाए, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसके दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहर मरवा देता है। तो इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद के अंदर कहा कि कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि उनकी तरफ दीन की बातें जाती है, उनको दीन की बातें बतलाई जाती है, लेकिन फिर भी अगर वो अल्लाह की तरफ नहीं आते हैं और गुनाहों में मुलव्विस नजर आते हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं एक वजह ये भी हो सकती है कि अपने गुनाहों की वजह से वो अल्लाह की बारगाह में नहीं आ रहे हैं या अल्लाह ने उनको अपनी दरबार से दूर कर दिया। ये गुनाहों की बहुत सारे असरात होते हैं। हजरत अनस इब्ने मालिक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास शागिर्द रहे हैं और आपके पास 10 साल तक तकरीबन उन्होंने खिदमत की है, खादिमे खास रहे हैं, उनका कहना है कि इन्नकुम लतअमलून अअमालन हिया अदक्कु फी शअरिकुम, कि तुम लोग ऐसे ऐसे अमाल अंजाम देते हो, ऐसे ऐसे काम करते हो जिनको हम देखते हैं कि हिया अदक्कु मिन शअरी फी आयुनिकुम, कि उन अमालों को तुम अपनी निगाहों के नजदीक बहुत ही मामूली तस्वुर करते हो, उन गुनाहों को, उन खलफशारों को, उन इस्यान और नाफरमानी को तुम लोग अपने नजदीक बहुत मामूली तस्वुर करते हो। हालांकि इन्ना कुन्ना लनुअद्दुहा फी अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुबिकात, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब हम रहा करते थे तो उस जमाने में हम इन गुनाहों को मुबिकात में शुमार क्या करते। मुबिकात किसको कहा जाता है? मुबिकात का मतलब होता है हलाक कर देने वाले, वो गुनाह जो इंसान को हलाक कर दे, वो गुनाह जो इंसान को निस्तो नाबूद कर दे, वो गुनाह जो इंसान को बर्बाद कर दे। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि हम इन गुनाहों को हलाक कर देने वाले तस्वुर करते थे, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हलाक ना कर दे इस दुनिया। और ये कब का वाकया है? ये उस वक्त का वाकया है जब हजरत अनस इब्ने मालिक सहाबी रसूल मौजूद है और उस दौर में सहाबा किराम भी मौजूद थे
तो गोया पता क्या चला कि ये दौर किसका दौर था? ये दौर था सहाबाए किराम के बाद, ये सहाबाए के किराम के दौर में रहते हुए ताबीईन का दौर है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खैरुल कुरून कर्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, यानी सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, उसके बाद मेरे सहाबाओं का जमाना है। तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी के बाद जो बेहतरीन दौर है, उस दौर की बात हजरत अनस इब्ने मालिक कह रहे हैं। तो इससे समझने वाली बात यह है कि जो गुनाह उस जमाने में किए जाते होंगे अनस इब्ने मालिक के दौर में या सहाबाओं के दौर में, वो कोई बहुत बड़ी बड़ी गुनाह नहीं होती, वो बहुत मामूली गुनाह होती होंगी, बहुत मुख्तसर गुनाह होती होंगी, क्योंकि वो जमाना सहाबा का जमाना था, वो ताबीईन का जमाना था, वो ताबीईन सहाबा के साथ रहे, उनके दोस्त रहे, उनकी सोहबत उन्होंने इख्तियार की, तो बड़े बड़े गुनाह नहीं थे, मामूली मामूली गुनाह सरजद हो जाया करते थे। लेकिन इनको, इन मामूली मामूली गुनाहों का हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि हम समझते हैं कि ये हलाक कर देने आने वाला है। इस वजह से जरूरी है, अगर आज के जमाने में आप हज़रत अनस बिन मालिक हमारे माहौल को देखते तो वो क्या लफ्ज इस्तेमाल करते, वो क्या कहते, मुबिकात के सिवा शायद कि कुछ और भी लफ्ज कह सकते थे। कि जिस तरीके से आज मुसलमान गुनाहों में मुलव्विस है और अपने गुनाहों को ना छोड़ने के लिए आज़म मुसम्मम कर चुका है कि हम अपने गुनाहों से बाहर नहीं आएंगे, चाहे कितनी ही तकारीर क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी ही हफ्तावारी प्रोग्राम क्यों ना हो जाए, चाहे कितने ही दुरूस क्यों ना हो जाए, मुसलमानों ने ये ध्यान रखा है कि अल्लाह की किताब की बात आए सुन लेंगे, सुनने का दिल किया, किताब और सुन्नत की बात आई मन किया सुन लेंगे, उसके बाद बाहर जाकर के सबको क्या है, जिस तरीके से एक इंसान दामन झाड़ करके अपने दामन को साफ करने की कोशिश करता है, इस तरीके से जो कुछ सुना वो सबके सब खत्म। ये अफसोस का मकाम है कि एक मुसलमान से अगर पूछा जाए कि कल के दुरूस में तुमने क्या सुना या आज के दुरूस में तुमने क्या सुना सुना के, तो जोहर के वक्त में उसके लिए बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि गफलत के शिकार है। इसका मतलब ये है कि हम दीन को सही मानों में जिस तरीके से लेना चाहिए उस तरीके से नहीं ले रहे हैं, बल्कि शरीयत को जिस हसासियत के साथ लेना चाहिए और उसके पैगामात को सुनना चाहिए और सुन करके उसको उस पर अमल करना चाहिए, ये हमारे अंदर से मखूद होता नजर आ रहा है। हाँ, इन चीजों में कमी नहीं होनी चाहिए, दुरूस में कमी नहीं होनी चाहिए, बयानात में कमी नहीं होनी चाहिए, हफ्तावारी प्रोग्राम होने चाहिए, जलसे जुलूस होने चाहिए, नाइट जलसे होने चाहिए, और खूब हो रहे हैं मुसलमानों के अंदर, खूब हो रही है सारी चीजें, लेकिन अमल का जब मेयार आता है नापने का कि अमाल के सिलसिले में मुसलमान किस मेयार पर खड़े हैं, तो जीरो नजर आता। हाँ, तो ये सारी चीजें जुलूस करना, जलसे कायम करना, मुनाकिद करना, ये बड़ी चीज नहीं। हमारी शरीयत के अंदर बड़ी चीज ये है कि अमाल शर्त। इंसान, कोई भी एक इंसान सिर्फ और सिर्फ मसलक की बुनियाद पर जन्नत का ठेकेदार नहीं हो सकता। कोई कहे कि हम इस मसलक के हैं, हम फुला मसलक के दावेदार हैं तो हम जन्नत में चले जाएंगे, तो याद रखिए मसलक की बुनियाद पर कोई भी शख्स दुनिया के जन्नत का ठेकेदार नहीं हो सकता, बल्कि अपने अकायद के बुनियाद पर वह जन्नत जा सकता है, अपने अमाल की बुनियाद पर, अमाल सालिहा की बुनियाद पर, और अमाल सालिहा के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास रहमो करम और फजल जब तक उसके साथ शामिल हाल ना हो, कोई भी शख्स दुनिया जन्नत में नहीं जा सकता है। तो इस वहम में खासतौर से अहले हदीस तबका का ये शुमार होना या इस वहम में मुब्तला होना कि हम बख्शे बख्शाए हैं या हम ऐसे ही चले जाएंगे क्योंकि हमने तो सुन्नत रसूल के हमें ठेकेदार हैं, बाकी सब लोग तो गलत हैं। ये ठीक है कि जो गलत करते हैं वो गलत है, लेकिन ठीक होने का ये भी मतलब है कि आप उस पर अमल करके दिखाएं, आप उस पर मिनवान जिस तरह से अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक अमल करें। सिर्फ बातों से अगर काम बननी होती तो बहुत सारे काम बन चुके होते। बातों से दुनिया के अंदर काम नहीं बना करते हैं, बल्कि अमल से, अमली मैदान में जब तक ना उतरा जाए तब तक काम नहीं होता है। तो बात चल रही थी गुनाहों के सिलसिले में, खताओं के सिलसिले में। तो गुनाहों के सिलसिले में अगर बात देखी जाए, बड़े बड़े अंबिया किराम, बड़े बड़े अंबिया किराम, जिसको हम अबुल अंबिया भी कह सकते हैं, जिसको हम अपने दादा अमजद भी कह सकते हैं, जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये सबसे पहले नबी, और इनसे खताएं लफ्ज़िशें हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनसे खता नहीं हुई, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, अल्लाह ने जिस बात का हुक्म दिया वो बात वो काम नहीं कर सके, तो जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से नाराज हो गए और फौरन ही गुनाह के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क्या तरीक़ा कार रहा था? ये तरीक़ा कार रहा था कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। एक छोटी सी नाफरमानी की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम को जन्नत जैसी नेमत से महरूम कर दिया। कितनी बड़ी खता हुई थी,
बस यही तो हुआ था कि अल्लाह ने कहा था कि उस दरख्त पे ना जाना, उस दरख्त को ना चखना, उसके जो भी फल है कुछ भी चीजें हैं, लेकिन वो गलती से खा गए बहकाव में आकर के शैतान के, और उसकी सजा इतनी बड़ी मिली कि जन्नत जैसी नेमत से अल्लाह ने महरूम कर ही दिया, बल्कि दोनों उसी वक्त बरहना भी हो गए थे, हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और किस कदर वहां से फिर उनको इस दुनिया के अंदर भेज दिया गया। और हम इतनी खताएं करते हैं, इतनी खताएं करते हैं, और फिर भी इस वहमो गुमान में मुब्तला है कि हम जन्नत के ठेकेदार हैं। तो ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? जरा दानिश्वरी के साथ, अक्लमंदी के साथ ये सोचने और गौर फिक्र करने का मामला है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मामूली सी गलती की वजह से अल्लाह ने जन्नत जैसी नेमत से महरूम कर दिया, और हम सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक इस्यान में नाफरमानी में मुब्तला है, और हम फिर भी इस वहम गुमान में मुब्तला है कि हम तो क्या है, बख्शे बख्शाए, हम तो वैसे ही चले जाएंगे, हम तो खुला मसलक और खुला दीन से ताल्लुक रखते हैं, हमारा अकीदा बिल्कुल ठोस है, हम अकीदा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा ठीक है। लेकिन कोई भी अकीदा और सही अहले हदीस का फर्द जो ये कहता हो कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस्यान में मुब्तला हो, नाफरमानी में मुब्तला हो और मुसलसल नाफरमानियां करते जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके अंदर अल्लाह का खौफ, उसकी मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत होगी, वो अपने गुनाहों से जरूर बाज आएगा, अपने गुनाहों को छोड़ेगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नुक्ता रहा, किस तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने गिरिया गुजारी की कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। क्या पता चला? अल्लाह की नाफरमानी करने से इंसान अपने खुद के नफ्स पर जुल्म करता है। अल्लाह की जब नाफरमानी इंसान करता है, किसी और के नफ्स पर जुल्म नहीं करता, बल्कि सबसे पहले जो जुल्म होता है उसका, वो उसके नफ्स पर होता है, किसी और के उसमें नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि उसका वायरस धीरे धीरे दूसरों तक भी जाता है, लेकिन सबसे पहला जो जुल्म होता है वो अपने नफ्स के साथ वो कर रहा होता है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिन खासिरीन, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, लिहाजा तू हमें माफ कर दे, अगर तूने हम पर रहमो करम का मामला ना किया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। इससे भी क्या नुक्ता निकलता है कि रहमो करम का मामला जब तक अल्लाह की तरफ से ना हो तो कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता, कोई भी इंसान कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात को अगर गर्दानेंगे, उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से भी लग़ज़िशें हुई, खताएं हुई, लेकिन वो अपनी गुनाहों पर डटे नहीं रहे, अपने गुनाहों पर जमे नहीं रहे, बल्कि फौरन उन्होंने मछली के पेट में अल्लाह के लिए अल्लाह से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मुझसे गुनाह हो गई है, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं जालिम हूं, तू मुझे माफ कर दे, अगर तू नहीं माफ करेगा तो मैं जालिमों में से हो जाऊंगा। इसी तरीके से और भी अंबिया अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया मिलता है कि जब उन्होंने एक शख्स से तू मैं हुई और थोड़ी सी अनबन हो गई और उनको एक घूसा मारा, तो जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चला गया, तो उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और डर सताने लगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, और फौरन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये ताइब हुए कि रब्बी ग़फिरली व तुब अलैया, ए अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। सूरह क़सस के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, लिहाजा तू मुझे माफ कर। तो अहले ईमान का, मुत्तकीन का ये शेवा है, और ये शेवा होना चाहिए कि जब भी उससे कोई खता, कोई लग़ज़िश, कोई गुनाह हो जाए तो फौरन वो अल्लाह की बारगाह की तरफ दौड़े और अपनी गुनाहों को बख्शवाने की कोशिश करे, ताइब इलल्लाह हो और तौबतन नसूहा करे, अच्छी और पक्की और सच्ची तौबा करे। ऐसी तौबा नहीं होनी चाहिए कि अभी हमने तौबा किया ज़ोहर में और फिर असर में जाकर के उससे मुब्तला हो, ज़ोहर में ये तौबा किया कि अब हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, असर में फिर नमाज छोड़ दी है, असर में फिर हमने तौबा किया कि फला काम में नहीं मुलविस होंगे जो हराम काम है, मगरिब के टाइम में फिर मुलविस हो गए, या मस्जिद से निकलते फिर मुलविस हो गए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रावी हदीस है, नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो भी इंसान गुनाह करता है और गुनाह के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, वह मुक़ीमुन अलैह, लेकिन फिर भी वो अपने गुनाह पर कायम रहता है, जमा रहता है, अपने गुनाह से बाज नहीं आता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, कल मुस्तहज़िउ रब्बहु, गोया कि उस शख्स ने अपने रब से मजाक, यानी जो गुनाह करके ताइब हो जाए,
इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों से माफी तलाफी करा ले अल्लाह से, लेकिन फिर वो फौरन उसी गुनाह पर डटे रहे और हटे नहीं उससे, जमा रहे और इस्तिग़फ़ार भी करे और जमा भी रहे। इसका क्या मतलब? इसका हासिल क्या है? इसका यह मतलब है कि आप अपने रब से मजाक कर रहे हैं। इसका यह मतलब है कि आप अपने रब से मजाक कर रहे हैं। ये हदीस अगर जो ज़ईफ है सनदन, लेकिन इसके अंदर जो बात बयान की गई है वो सही है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर और भी जगह में इरशाद फरमाया कि जब एक मोमिन से जब गुनाह हो जाते हैं तो उस पर वो मुसिर नहीं रहता, उस पर डटा हुआ नहीं रहता वो, बल्कि अपने गुनाहों से बाज आता है, ताइब होता है। तो कहने का मतलब पूरे खुतबे का खुलासा कलाम ये है कि इंसान से बशरी तकाजों के मुताबिक गुनाह हो जाना होता है, इस्यान ये सारी चीजें हो जाती है, लेकिन एक मोमिन का शेवा ये है, एक कामिल मुसलमान का शेवा ये है कि जब कभी उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसको अव्वले मरहला में चाहिए कि वह अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करे और अपने गुनाहों से ताइब हो, वजू करे, तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए और 2 रकात नफल नमाज पढ़े उस गुनाहों से माफी के लिए, और अल्लाह से अज़्म मुसम्मम ये करे कि आइंदा हम इस गुनाह पर दोबारा नहीं आएंगे या आइंदा इस गुनाह को हम दोबारा नहीं करेंगे। तब जाकर के, और भी बहुत सारे इसके शुरूत है तौबा के, कहीं जाकर के उसका तौबा कबूल हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसे ही मजाक करता रहा, यानी तौबा भी कर रहा है और उस गुनाह पर जमे हुए भी है, तो फिर याद रखिए कि वो तौबा नहीं कर रहा, बल्कि वो दीन इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो शरीयत के साथ मजाक कर रहा है, अल्लाह के साथ वो मजाक कर रहा है, जिसका अंजाम बहुत ही खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल सालेह करने की तौफीक नसीब फरमाए। मौला करीम हमें हकीकी मानों में और सही मानों में तौबतन नसूहा की तौफीक नसीब फरमाए। मौला करीम हमसे जो भी खताएं लग़ज़िशें हो जाती है उसको तू अपने रहमो करम से माफ फरमा। मौला करीम हमें सही मानों में तेरे रास्ते पर, तेरे दीन पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमा। मौला करीम हमें से जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला करीम जो बीमार है या मरीज है उनको शिफा कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको करवट करवट चैन नसीब अता फरमा, उनको सवाल जवाब में आसानी अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन तुम हम सब के आमाल सालिहा को कबूल फरमा। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व सल्लम।